बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 8 यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 20 पेज नंबर 22। Today's topic is formula unit plus practice problem 1.3 on your book page number 22. Formula unit page number 22. Formula unit is related with ionic compound. We have already discussed the molecular formula, and molecular formula is related with covalent compound, but formula unit is related with ionic compound. Ionic compounds having ionic bond, but molecular compound having covalent bond. Covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between atoms, and ionic bond is formed between atoms due to electrostatic force of attraction, or the ionic bond is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom. Ionic bond is formed between metals and non-metals. Metals give electron and non-metals gain electron. Now the formula unit is related with ionic compound. By definition, the formula unit is the smallest repeating unit of an ionic compound, showing the simple ratio between the ions. आयोनिक कंपाउंड जिन आयन से बना होता है उन्हीं आयन्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो होता है फार्मूला यूनिट उसी को शो करता है. द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन ए आयोनिक कंपाउंड. इज इट क्लियर? आयन्स combine to form a crystal lattice. Crystal lattice is the symmetrical three-dimensional arrangement of atoms or ions inside a crystal. You know what is crystal? Crystal is the geometrical shape of a chemical compound, the three-dimensional shape of a chemical compound, and the crystal lattice is the symmetrical three-dimensional arrangement of atoms or ions inside a crystal. Now, for example, in the whole crystal lattice of sodium chloride that is NaCl, the ratio of Na plus and Cl minus ion is 1:1, and its formula unit is NaCl. You know, sodium chloride is formed by the combination of sodium ion and chloride ion. Sodium ion and chloride ion. The simplest ratio of sodium and chloride ion in crystal lattice that is 1:1. क्या है इसकी simplest ratio क्या है? 1:1, यानी 1 sodium combined with 1 chloride ion. 1 sodium is combined with 1 chloride ion. The ratio is 1:1. इसी तरह अगर आप पोटाशियम क्लोराइड का देख लें तो पोटाशियम क्लोराइड में भी पोटाशियम आयन कंबाइंड विद क्लोराइड आयन forming an ionic compound of potassium chloride, and the ratio in potassium chloride is 1:1. Is it clear? अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाए, तो उसी स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि इसमें किस तरह आयंस की अरेंजमेंट होती है. एक क्रिस्टल लेटिस में इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है और इसके रेशो 1:1 किस तरह है. अगर आप सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेटिस देखें तो यहाँ पे देखिए ये सोडियम है, ठीक है, ये क्लोरीन है, ये फिर सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, क्लोरीन. इस तरह आप स्ट्रक्चर बनाते जाएं. ये फिर क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम, सोडियम, क्लोरीन, क्लोरीन, फिर सोडियम. ठीक है. ये बड़ा सर्कल जो है ये सोडियम को रिप्रेजेंट करता है, छोटा सर्कल जो है ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है. तो दैट इज़ द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड which show the crystal lattice. Crystal lattice is the
symmetrical arrangement, three-dimensional arrangement of ions present in a crystal of a ionic compound, that is crystal lattice. अब देखिए, each sodium is surrounded by 6 क्लोरीन। तो ये सोडियम है, 1 2 3 4, एक इस साइड पे एक ऊपर, तो टोटल 6 क्लोरीन है। इसी तरह अगर आप क्लोरीन को देख ले तो क्लोरीन का A1 2 3 4, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, टोटल 6। ईच क्लोरीन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम एंड ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन। नाउ 6 क्लोरीन एंड 6 सोडियम को अगर आप सिंपल करें तो इसकी रिपीटिंग यूनिट्स दैट इज़ 1:1। 1:1 सोडियम और क्लोरीन के दरमियान रेशो क्या है? 1:1, एंड दैट इज़ द रिपीटिंग smallest repeating unit of an ionic compound, showing the simple ratio between the ions in a crystal lattice that show the formula unit of sodium chloride। इसी तरह अगर आप पोटाशियम क्लोराइड का देख लें तो वो भी KCl, it means KCl potassium chloride, and potassium chloride may be 1:1। 1:1 is the smallest repeating unit of an ionic compound, showing the simple ratio between the ions in a crystal lattice। Is it clear? That is formula unit। formula unit अगर आप देख ले, it represent an ionic compound and the chemical formula or molecular formula represent the covalent compound। Clear? अच्छा स्टूडेंट्स, शाबाश, पेंसिल निकालिए, क्रिस्टल लेटर्स को अंडरलाइन करें, इसके ऊपर शाबाश पेंसिल से या पेन से लिखें, इसकी डिफिनीशन लिखिए। शाबाश, द सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड ए क्रिस्टल। लिखिए यहाँ पे, ये खाली जगह जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे लिखिए, द सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड ए क्रिस्टल, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल लेटस। इज इट क्लियर? नो, कम टू practice problem 1.3। What is the statements of practice problem? How many atoms of each element are present in one formula unit of each of the following compounds? यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं और कहते हैं कि इन आयोनिक कंपाउंड्स में जितनी भी फार्मूला यूनिट्स है इसमें कितने एटम्स हैं। Hg2Cl2, NH4 H2PO4, MgCl2 and NH4OH। इज़ इट क्लियर? अब हम बताएं कि इसमें कितनी कितनी एटम्स हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3 में फर्स्ट क्या है? ए नंबर, दैट इज़ Hg2Cl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या नाम है इसका? मर्क्यूरिक क्लोराइड। देखिए ये मरकरी है, हाइड्रोगायरम, और ये क्लोरीन है। तो मरकरी के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स ऑफ मरकरी आर प्रेजेंट इन दिस फार्मूला यूनिट एंड 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन आर प्रेजेंट इन दिस फार्मूला यूनिट। टोटल कितने एटम्स हैं? टोटल 4 एटम है, 2 मरकरी के और 2 क्लोरीन के। तो आप देख ले यहाँ पे 2:2 है इसमें। 2 atoms of mercury and 2 atoms of chlorine are present in this formula unit, total 4 atoms है ना। बी नंबर जो है that is NH4 ammonium orthophosphate, NH4 H2PO4, that is called ammonium orthophosphate। आप इसमें देख ले, इसमें नाइट्रोजन के एक एटम है, हाइड्रोजन के टोटल 4 ये है और 2 ये है, टोटल 6 एटम्स है। फास्फोरस का एक एटम है और ऑक्सीजन के टोटल 4 एटम है। तो 1 नाइट्रोजन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम, 1 फास्फोरस एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। 4 + 1 = 5, 5 + 6 = 11, 11 + 1 = 12। There are 12 एटम्स इन अमोनियम ऑर्थोफॉस्फेट। क्या कितने हैं? अमोनियम ऑर्थोफॉस्फेट में 12 एटम्स है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है इसका नाम? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। Mg के कितने एटम्स हैं?
दैट इज़ 1, कितने हैं 1, और क्लोरीन के कितने एटम्स हैं दैट इज़ 2, 1:2। इस फार्मूला यूनिट में मैग्नीशियम और क्लोरीन की रेशो क्या है 1:2। टोटल कितने एटम्स है टोटल 1 + 2 = 3। एक मैग्नीशियम का है और 2 क्लोरीन के है, टोटल 3 एटम्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड। इट्स क्लियर? दैट इज mercuric chloride, that is ammonium orthophosphate, and that is magnesium chloride. Now D number. D number अगर आप देख ले दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रोजन के कितने एटम्स है आप बताए शाबाश, कितने हैं 1। हाइड्रोजन के कितने हैं 4, ये है और एक ये है, टोटल कितने हैं हाइड्रोजन के 5 है और ऑक्सीजन के कितने हैं 1 है। इज इट क्लियर? तो इसमें रेशो क्या है 1:5:1, दैट इज़ 1:4:1:1। इस तरह भी आप कह सकते हो। तो टोटल कितने एटम्स है इसमें, नाइट्रोजन के 1 है, हाइड्रोजन के 5 है, ऑक्सीजन के 1 है, टोटल कितने हैं टोटल 7 एटम्स आर प्रेजेंट इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 1 2 3 3 types of elements are present in ammonium hydroxide and 1 atom of hydrogen, 5 atoms of oxygen, 1 atom of nitrogen, 5 atoms of hydrogen, and 1 atom of oxygen is present in ammonium hydroxide. There are 2 elements are present in this magnesium chloride, 1 magnesium and 2 क्लोराइड 2 क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट। इसी तरह अमोनियम आर्थोफॉस्फेट में 1 2 3 4 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट और 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स में हर एक के कितने एटम्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। इस तरह मर्क्यूरिक क्लोराइड में 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है और इसमें हर एक के कितने कितने एटम्स है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। इज़ इट क्लियर? इसी तरह आप डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स अगर आप देख लें तो इसमें आप नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट इज़ द केमिकल फार्मूला लाइमस्टोन। इसमें कितने कैल्शियम्स है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन्स हैं। ठीक है, टोटल कितनी एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स है और टोटल एटम्स कितने हैं टोटल 5 एटम्स आर प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? इसी तरह आप डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हो। शाबाश बेटा, इसी टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क अपने साथ नोट कर ले। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन कंपाउंड्स H2SO4 sulfuric acid and magnesium nitrate. How many types of elements are present in sulfuric acid and how many atoms are present in sulfuric acid? इसी तरह मैग्नीशियम नाइट्राइड का फाइंड करेंगे, अपने साथ रफ कॉपी में नोट करें।